خوشی ہو جاتی ہے۔ ملاقات کے ایک اور شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے، میں آپ کا میزبان شاکر شبیر بٹ۔ ناظرین، آج ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، حلقہ انتخاب لنگیٹ سے الیکشن لڑکے اور جیت کے آئے انجینئر رشید، جو پارلیمنٹ ممبر نارتھ کشمیر سے چنے گئے، ان کے بھائی ہے۔ آج ہم نے بہتر سمجھا ان سے ملاقات کریں گے، ان سے بھی سوالات کریں گے اور ان سے ان کے جوابات طلب کریں گے۔ خورشید صاحب، پہلے آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلا آپ سے یہ سوال رہے گا، کیونکہ اگر آج چوتھا دن دیکھے اسمبلی کا تھا، آج اگر اسمبلی میں دیکھے ہنگامہ آرائی بہت دیکھنے کو ملی، سوشل میڈیا پہ سارے ویڈیوز سامنے آئے، اگر ہم یہ کہے ہاتھا پائی تک ہوئی ہے۔ کیا سب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا ایسا ہوا کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہ آئی؟ سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ یہاں آئے۔ تو جہاں تک جو آج ہاؤس کی کارروائی تھی، تو کل 6، 7 اور 8 3 دن جو ہے لسٹ آف بزنس میں تھا کہ گورنر صاحب کا جو خطبہ تھا جو 5 تاریخ کو ہوا، اس پہ جو ہے اس پہ بحث ہوگی، یہ لسٹ آف بزنس میں تھا۔ بٹ انفارچونیٹلی آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ سپلیمنٹری لسٹ کے تحت جس وقت یہ ریزولوشن لائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ مشکل سے آدھے گھنٹہ کا مطلب وقت جو ہے اس کے ساتھ گزرا، کیونکہ اس پہ کوئی زیادہ ڈیبیٹ نہیں ہوا اور وہ بل ووٹ کے لیے بھی پاس ہو گئی۔ بٹ انفارچونیٹلی تب سے لے کے آج جس وقت ہاؤس ایڈجورن ہوا 2 دن، بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے ہاؤس کو چلنے نہیں دیا۔ تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، چونکہ کل ہی کہا تھا بھاجپا والوں نے کہ ہم جو ہے ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو خدشات تھے، ہمیں بھی گورنر صاحب کے خطبے پر بات کرنی تھی، جو گورنر صاحب کے خطبے میں جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، چاہے سیاسی معاملات، چاہے ہمارے تعمیر ترقی کے معاملات، تو ہم چاہتے تھے کہ ہم بھی اس پہ ڈیبیٹ کریں، ہم بھی وہ باتیں، وہ چیزیں جو اس خطبے میں جن کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، ہم وہ سامنے لائے اور ہم ان قومیوں کو جو ہے ان کی نشاندہی کریں۔ بدقسمتی کی وجہ سے بی جے پی والوں نے نہ تو کل اس پہ کوئی بات کرنے کا موقع کسی بھی ملک کو دیا اور آج بھی نہیں دیا۔ لیکن جو ہمارے خدشات تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو کل بل ریزولوشن لائی گئی، اس میں جو ہے ایک قسم کا نیشنل کانفرنس لائی، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایڈیشنل ریزولوشن، جس کے لیے جو آج ہم نے سبمٹ بھی کیا 6 ممبروں نے، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ ریزولوشن لایا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں خدشات تھے کہ بی جے پی والے یہاں ہونے نہیں دیں گے ایسا، تو ہم نے سپیچ جو ہم گورنر صاحب کے خطبے مطلب اس کے ریئیکشن میں جو ہم کچھ باتیں کہنے والے تھے، وہ بھی اس چیز کے لیے بھی ہم پریپیئر تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید بات کرنے نہیں دیں گے، وہ ہنگامہ آرائی کرے گی جیسا ہوا بھی۔ تو اس وجہ سے ہم نے ایک بینر لیا تھا جس پہ ہم نے ریسٹوریشن آف آرٹیکل 370 اینڈ ریسٹوریشن آف 35A اور ریلیز آف پولیٹیکل پرزنر جو ہے ہم نے اس بینر پہ لکھا تھا، ہم نے ڈسپلے کیا۔ تو بی جے پی والے جو ہے آلریڈی ان کا موڈ تھا، انہوں نے من بنایا تھا کہ وہ ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے۔ انفیکٹ انہوں نے آج بھی کہا کہ ہم کل کے دن بھی ہاؤس کو چلنے نہیں دیں گے۔ تو وہ آگ بے گولا ہوئے، ظاہر سی بات ہے ان کی سیاسی مجبوریاں ہیں، ورنہ ان کو بھی معلوم ہے کہ 370 اور 35A کی وجہ سے، ایبروگیشن کی وجہ سے جو ہے سب سے زیادہ نقصان ان کا ہوا۔ آپ جموں میں دیکھ لیجئے، ان کا کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، ان کی زمینیں جو جا رہی ہیں، وہاں کا آٹو رکشہ والا دیکھ لیجئے، باہر سے آیا ہوا ہے، بہار سے آیا ہوا ہے، یو پی سے آیا ہوا ہے، تو ان کو بھی نقصانات ہیں، ان کی جابز بھی سیف نہیں ہیں، ان کی زمینیں بھی سیف نہیں ہیں، ان کی ریسورسز بھی سیف نہیں ہیں، لوکل جو ہیں اس وقت مر رہے ہیں۔ تو ان کی لیکن سیاسی مجبوری ہے، انہیں دلی کی سینٹرل لیڈرشپ کو خوش کرنا ہے، ان کے ماتحت ان کو کام کرنا ہے، تو ان کی سیاسی مجبوری ہے۔ ادروائز ان کو بھی اس چیز سے فائدہ ہے کہ اگر 370 اور 35 سے واپس آئے گا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے کہ جو ہماری مرضی کے خلاف جو فیصلہ کیا گیا اس وقت، یہاں کی پوری عوام کو جو ہے اس وقت کرفیو کر کے جو ہے گھروں میں بند کیا گیا، اور ہمیں جو ہے ایک لفظ بھی جو ہے اس کے خلاف جو ہے کہنے نہیں دیا گیا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد آج پہلی بار موقع ملا کہ لوگوں کی آواز جو ہے ہندوستان کے 140 کروڑ عوام کے سامنے اور ہندوستان کی مرکزی سرکار، ملک کی مرکزی سرکار کے سامنے ہم یہ بات رکھیں کہ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں وہ چیز جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ایک بنیادی فرض ہے، ایک سیاسی فرض ہے جو لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تعمیر ترقی کے بھی جو معاملات ہیں ان پہ بھی بات کرنا چاہتے تھے، بٹ
बदकिस्मती की वजह से जो है बीजेपी वाले हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। खुर्शीद साहब, आपने दौरान गुफ्तगू दो बातें वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहली बात आपने ये कही कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता एक रेजोल्यूशन लाई जो सब ने देखी। आपके अल्फाज ये है कि हम ये चाहते हैं कि उससे एक स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, उससे स्ट्रॉन्ग करारदाद हम लाना चाहते थे। पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कमी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस करारदाद में रही थी जिस कमी को शेख खुर्शीद पूरा करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले जिस वक्त असेंबली सेशन का जिस वक्त शेड्यूल निकला, हमने सेक्रेटरीट को जो है अप्रोच किया, क्यों डायरेक्टली जो है ये अगर कोई रेजोल्यूशन, कोई बिल या कोई सवाल जो है वो असेंबली के सेक्रेटरीट में जो है सबमिट करने पड़ते हैं। हमने सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेंबली साहब को, उनके डिप्टी सेक्रेटरी साहब को हमने अप्रोच किया। हमने उनको कहा कि हम रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं। ये 4 तारीख से पहले की बात है, 2 दिन पहले, 1 या 2 तारीख की बात है जिस वक्त ये सेशन का अनाउंसमेंट हुआ, ये शेड्यूल का। तो हमने उनको अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि इस सेशन में जो है कोई प्रोविजन नहीं है, बिल वगैरह या रेजोल्यूशन कुछ लाने की अभी ज़रूरत नहीं है, प्रोविजन नहीं है। तो हमने सोचा ठीक है, देखेंगे अब 370 35 से या जो डेवलपमेंटल मसले हैं तो इन पे कैसे बात की जाए। अगर तो जब हम असेंबली में आए उसके बाद जो है हमने सोचा कि हम अपनी स्पीच में जब डिबेट होगा या जिस वक्त स्पीकर साहब का इलेक्शन हुआ उसको जो हम मुबारकबादी देंगे, उसमें या ओबिचुरीज में भी कुछ बातें करनी थी। वक्त नहीं दिया गया वहाँ पे अक्सर मेंबरान को, जो है मुश्किल से जो पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, उनके कुछ मेंबरान को बात करने का मौका मिला। तो हम चाहते थे कि हम बात करें 370 और 35A के हवाले से, हम एक रेजोल्यूशन लाएं। रेजोल्यूशन का प्रोविजन नहीं था। फिर वहीद साहब और मैं, हम इकट्ठे एक ही सीट, मतलब एक ही टेबल पे हैं, तो उन्होंने जो है एक ओरल रेजोल्यूशन जिस वक्त उन्होंने डिक्टेट की तो स्पीकर साहब ने कहा मैंने नहीं सुना वो ये, तो एडजोर्न हुआ उस दिन हाउस। फिर नेक्स्ट डे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन लाई। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो है हमसे मशवरा नहीं किया। शायद हम भी कुछ सजेशंस अपने जो हैं या अपने जो हमारी जो कुछ रिजर्वेशंस थी उसके ड्राफ्ट के हवाले से हम उनको कहते कि इस टाइप का ड्राफ्ट होना चाहिए था। जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस की बात कही है, वहाँ 35A 370 का जिक्र नहीं किया गया। सबसे अहम बात जो है कि 370 का जो फैसला लिया गया 5 अगस्त को, उसकी मजम्मत, उसकी कंडेमनेशन कि किस तरीके से उसको किया गया, लोगों की ख्वाहिशात और लोगों की विल के अगेंस्ट किस तरह किया गया और लोगों को दबाया गया उस वक्त। लोगों को विरोध तो दूर की बात, एक लफ्ज भी कहने का मौका नहीं दिया गया। हम चाहते थे कि इस वक्त लोगों ने हमें चुना है, कम से कम हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों तक ये बात पहुंचाए। उस चीज का जिक्र नहीं था कल जो रेजोल्यूशन है। लेकिन हमने जो पहले ही इलेक्शन में जो हमने वादा किया है अपने लोगों के साथ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे के लिए अगर कोई भी पार्टी कोई भी कदम उठाती है तो हम अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं करेंगे, हम वेलकम करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे। अगर कहीं सुधार की गुंजाइश होगी, सुधार की जरूरत होगी तो हम वो भी गुजारिश करेंगे, उसके लिए भी जो है हम काम करेंगे, उसके लिए भी, जैसा कि हमने आज किया। तो उन्होंने जब रेजोल्यूशन लाई हमने स्ट्रांगली सपोर्ट किया, हमने वोट किया, लेकिन साथ ही हमने उसमें कुछ खामियां पाई कि उसमें जो है सिर्फ रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस लिखा हुआ है, उसमें 35A 370 नहीं लिखा है, उसमें जो कंडेमनेशन है, रिजेक्शन है 5 अगस्त के फैसले की, वो नहीं लिखा गया। तो हमने एक सेपरेट रेजोल्यूशन लाया। अल्दो हमने वोट किया रेजोल्यूशन को, तो हम ये कहते हैं, मेरा ये मानना है कि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाई वो एक पहला कदम है, वो एक कमजोर पहला कदम था वो, बट आखिरी या एक मुकम्मल एक कदम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक मुकम्मल एक कोशिश की जाए, एक जामिया कोशिश की जाए कि जिससे एक मैसेज दिया जाए लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, हिंदुस्तान की हुकूमत को, अब और अपने लोगों की जो यहाँ पे जो ख्वाहिशात हैं, उनके दिलों में जो वो बड़ास वो नहीं निकाल सके 5 अगस्त के बाद, कभी भी वो अपनी बात रखने का उनको मौका नहीं मिला। हम चाहते हैं कि वो बात करें। खुर्शीद साहब, अपोजिशन लीडर का कल बयान सामने आया कि जो आर्टिकल 370 है इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे मोहर लगाई है, ठीक, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने भी इससे मोहर लगाई है, और अल्फाज उनके ये थे कि जब बाप कोई फैसला करता है तो बेटे को फैसला करने का कोई हक नहीं रहता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा हम असेंबली की कार्रवाई को आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक न जो रेजोल्यूशंस लाई गई आर्टिकल 370 और 35A के हवाले से, जब तक उनको हटाया ना जाए। कैसे आप इस बयान को देख? मैंने उनका ये बयान नहीं सुना। क्या उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि बाप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस, क्या उन्होंने ये कहा?
अल्फाज ये थे, हम वहां पे मौजूद थे, अल्फाज ये थे जब बाप कोई तो फैसला मैं करता मजम्मत है। करता हूँ, सबसे पहले मैं इन अल्फाज की मजम्मत करता हूँ। ये पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, उनको नहीं चाहिए था कि इस किस्म के जो अल्फाज वो इस्तेमाल करें। वो एक अपोजिशन के लीडर हैं, उनको कानून मालूम होना चाहिए, उनको सही अल्फाजों का जो है सही अल्फाजों की सिलेक्शन करनी चाहिए जब वो कोई बात करें। वो कोई मतलब आम व्यक्ति नहीं है, 28 लेजिस्लेटर्स को वो इस वक्त जो है हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं असेंबली। तो मैं पहले मजम्मत करता हूँ अगर उन्होंने इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो सेकंडली जो उन्होंने बात कही वो खुद कंफ्यूजन है। अगर ठीक है, मान लीजिए वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन लेजिस्लेशन एक अलग चीज है। आप पार्लियामेंट में या असेंबली में कोई भी बात कर सकते हैं आप इसके लिए, क्योंकि कानून जो बनाता है लेजिस्लेशन बनाती है, पार्लियामेंट या असेंबली जो है कानून बनाती है। फिर उन कानूनों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है वो उनको एग्जीक्यूट करती है। तो मेरा इसमें यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने या अगर पार्लियामेंट ने इस चीज को फाइनलाइज किया, अगर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर वो किस चीज के लिए विरोध कर रहे हैं? तो फिर वो विड्रॉ करने के लिए क्यों अपील कर रहे हैं? वहां वो एक ही स्टैंड ले ना, वो कंफ्यूजन है। अगर इसकी रिलेवेंस है तो ठीक है, ये मत बोलो कि इसकी कोई रिलेवेंस ही नहीं है। अगर रिलेवेंस नहीं है तो हाउस को चलने दो, फिर हाउस को चलने दे। फिर क्यों कह रहे हैं कि इसको विड्रॉ कीजिए, तब तक हम हाउस को चलने दें? वो कंफ्यूजन है। आप देख लीजिए उनके जो नेशनल जो उनके मीडिया जो बीजेपी की आईटी सेल के जो नेशनल हेड है अमित मालविया, उन्होंने कल एक बाज़ाब्ता ट्वीट किया, उन्होंने वेलकम कहा। उन्होंने कहा कि हम वेलकम करते हैं इस रेजोल्यूशन का, इसमें कोई 370 या 35 या बाकी चीजों का जिक्र नहीं है। उसके बाद पता नहीं आधे घंटे बाद जो है उन्होंने वो डिलीट किया। ये भी एक बड़ी बात है, क्यों डिलीट किया, इसकी क्या वजूहत है? और सेकंडली बीजेपी यहां से लेके नेशनल लेवल तक वो कंफ्यूजन है। हालांकि उनको खुद भी पता है, उनको खुद भी मालूम है कि उनका नुकसान हुआ 370 और 35A की एब्रोगेशन की वजह से। सरकार ने एक दिन ये भी कहा था उस वक्त के यहाँ हालात ठीक होंगे, आतंकवाद जो है यहाँ 370 और 35A की वजह से, क्योंकि इस वक्त जो है उनका ये दावा जो है इस वक्त खोखला साबित हो रहा है। आप देख लीजिए मिलिटेंसी पीक पे है इस वक्त, आम लोगों का खून हो रहा है। मुझे याद नहीं है कितने 10-20 बरसों बाद जो है यहाँ लाल चौक में यहाँ ग्रेनेड हमला हुआ जिसमें 10-15 लोग जख्मी हुए 2-4 दिन। हम मजम्मत करते हैं हर किस्म की वायलेंस की, लेकिन उन्होंने जो एक जवाब दिया था 370 और 35 से हटाने का कि इससे तशद्दुद में यहाँ पे जो है फर्क आएगी, क्या फर्क आई? नहीं। तो ये मतलब हम कहते हैं कि बीजेपी वालों की मजबूरी है, अदरवाइज वो खुद भी जानते हैं उनके रिसोर्सेज, उनके जॉब्स, उनके लैंड्स या बाकी चीजें जो है वो महफूज नहीं है। तो वो भी चाहते हैं अंदर अंदर से, वो भी चाहते हैं कि 370 और 35 से वापस आए। खुर्शीद साहब, क्योंकि वक्त की भी कमी दामनगीर है, आपसे मैं अहम सवाल करना चाहता हूँ। जो भी ये आज हाउस में हुआ, जो भी असेंबली में, खासकर आज के दिन की बात करूंगा, क्या मैसेज इससे आम लोगों तक जाता है? क्योंकि अगर हम देखें 10 साल बाद यहाँ पे अगर हम देखें लोगों ने अपनी सरकार चुनी, लोगों ने अपने नुमाइंदों को कामयाब किया, लोगों की आशय है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल है, चाहे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें या बाकी जो अगर हम ग्राउंड लेवल से देखें बहुत से मसलों मसाइल है। क्या मैसेज इन चीजों भी आज हाउस में हुआ वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए, जिस वक्त भी स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि आप नीचे बैठिए, मैं बैठा, लेकिन मेरा जमहूरी हक है कि मैं बात करूं। मुझे अपने लोगों ने जो वोट किया, उन्होंने मुझे अपनी नुमाइंदगी करने के लिए वोट किया, तो मुझे उनकी बात जो है हाउस में रखनी है। अगर मेरी बात वहां नहीं सुनी जाएगी तो मैं प्रोटेस्ट के जरिए, मैं बैनर के जरिए, मैं किसी और जमहूरी तरीके से जो अपनी बात, तो ये सवाल हमें शायद बीजेपी और सुनील शर्मा को पूछना है कि वो हाउस को क्यों नहीं चलने देते। एक तरफ से अगर वो कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, तो दूसरी तरफ से इसकी विड्रॉवल को लेके क्यों इतने एडमेंट है? वो क्या माजरा है, क्या है? हम चाहते हैं कि ये से गलत मैसेज आता है। बिल्कुल, जो गवर्नर साहब का खुतबा था, गवर्नर साहब के खुतबे में जो चीजें, जिन चीजों का जिक्र नहीं किया गया, चाहे सियासी तौर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के हवाले से उसमें कोई बात नहीं कही गई। 370, 35 से हमारी जो वेरिफिकेशन हैं, जो पासपोर्ट वेरिफिकेशन या जॉब के बाद जो वेरिफिकेशन, ये अफ्सपा, PSA, इस पे कोई बात नहीं हुई। या हमारे डेवलपमेंटल जो इश्यूज है, आप देख लीजिए कि यूथ को, नौजवानों को एक उम्मीद है हमसे, चाहे मजदूर तबका है,
उनकी जो कस्टमरी माइनिंग या उनकी जो हमारे लोकल रिसोर्सेज हम लोकली यहाँ यूज़ करें, इस्तेमाल करें, उनका मसला है। एक मजदूर तबके का, पढ़े लिखे नौजवानों का ये मसला है कि कहीं उनकी एज रिलैक्सेशन का मसला है, कहीं रिजर्वेशन में उनके साथ ओपन मेरिट के साथ जाती हो रही, कहीं जो लिस्ट्स जो जिन्होंने फॉर्म्स भरे हैं या जिन्होंने इंटरव्यूज वगैरह जो इसकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की है, अब लिस्ट जो है आउट नहीं हो रहे हैं, कहीं पे जो है वैकेंसीज रेफर नहीं हो रही हैं SSRB को, कहीं पे जो है मतलब जो यूथ कोई बिजनेस, कोई कारोबार या इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई ऐसी नहीं है कि सिंगल विंडो सिस्टम हो जिससे हमारे नौजवान जो है एक आसान तरीके से जो है अपने छोटे मोटे बिजनेस शुरू करें, या कोई जो बाहर जाना चाहते हैं पासपोर्ट्स के लिए उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। तो नौजवान को हमसे उम्मीद है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है, हम गुजारिश करते हैं, हम उम्मीद भी करते हैं कि जो यहाँ पे हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे हुए जो भी इस वक्त मेंबरान है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस या BJP के अरकान, हम उम्मीद करते हैं कि वो हाउस को चलने देंगे और अगर कोई बात रखनी होगी जमहूरी तरीके से रखें, हम उस पर डिबेट करें, हम उस पर डिस्कशन करें। अभी गवर्नर साहब के खुतबे में जो चीज़ें मिस थी, अच्छा इसके अलावा आप देख लीजिए डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से कोई बात नहीं हुई, इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। लोगों की आशाएं हैं, फ्री राशन का वादा किया गया, उस पर कोई बात नहीं हुई, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा किया गया, उस पे सिर्फ 200 यूनिट डिजर्विंग कुछ लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को देने की बात कही गई, एडिशनल गैस सिलेंडर, फ्री गैस सिलेंडर्स की बात कही गई, उस पर बात नहीं हुई। तो जरूरत है, हम चाहते हैं कि डिबेट हो, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, हम भी कोई गैर जरूरी वहां कोई हंगामा नहीं करेंगे, लेकिन जब BJP वाले 25-30 आदमी, जब 25-30 नुमाइंदे वहां खड़े हों और वो ये धमकी दें कि हम चलने नहीं देंगे, हमारे पास भी कोई चारा नहीं बचता है कि हम बैनर के थ्रू, हम प्रोटेस्ट के थ्रू अपनी बात वहां रखें। तो हम ये उम्मीद करते हैं, असल में BJP वाले भटक रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं कि जो 6 साल यहाँ पे जो मरकज डायरेक्टली यहाँ पे रूल कर रहा था, उनको पता है कि उनको जवाबदेह बनाएंगे हम लोग, उनको मालूम है। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने जो वादे किए हैं, उन्होंने जो उनका जो पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उनको मालूम है कि हमसे भी जवाब लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि इन चीज़ों पर बात हो, मुलाजमों पे, मतलब डेली वेजर्स, ये रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर जंगलात, इन पे, या जो प्रमोशंस का मसला है, आप देख लीजिए NYCs, SPOs बेचारे 8-9 हज़ार पे, हम चाहते हैं कि ये चीजें हम रखेंगे हाउस में। यही तो अलमिया है, इसी वजह से हम आग बिगोला है ना कि हमें ये बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं और हम कोशिश करेंगे, हम गुजारिश भी करते हैं आपके थ्रू, खासकर BJP वालों, कि आपकी अगर हुकूमत यहाँ नहीं बनी, आपको जम्मू कश्मीर के लोगों ने हुकूमत से बाहर किया इस वक्त, कहीं कल को ऐसा ना हो कि आपको हाउस से भी बाहर कर दे। इस वक्त आप अपोजिशन में, शायद अगले 5 साल बाद अगर आप जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवानों और जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम और जनता का अगर इनके मसाइल का आप अजाला नहीं करेंगे या होने नहीं देंगे सरकार के जरिए, जो इस वक्त सरकार है, तो वक्त ऐसा आएगा कि आपकी जगह हाउस में भी नहीं होगी। हम उनसे ये शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शेख खुर्शीद, जो हल्का इंतखाब लंगेट से इलेक्शन लड़े और बाज़ाब्ता इलेक्शन में इन्होंने कामयाबी हासिल की। और अगर हम आज की बात करें, चौथा दिन सेशन का था हाउस में, और वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो आप सब हजरात के भी सामने होगा। शदीद एहतजाज हुआ, शदीद मुखालिफत की गई, बात हाथापाई तक भी पहुंची। और अगर हम देखें, आज बाज़ाब्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल तीसरे रोज, सेशन के तीसरे रोज, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 और 35A को बचाने के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन करारदाद हाउस में पेश की, और उसको अक्सरियती वोट मिलके उसको कामयाब किया गया, उसको पास किया गया। और आज बाज़ाब्ता PDP ने दूसरी बार करारदाद लाई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के जो कैंडिडेट जिनसे हम बात कर रहे थे, शेख खुर्शीद, ये आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे थे, इन्होंने आज करारदाद वहां पे लाई। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने आज करारदाद लाई, और उस पे भारतीय जनता पार्टी ने शदीद एहतजाज, शदीद इख्तिलाफात इनसे दिखाए। और बाज़ाब्ता आज शेख खुर्शीद ने एक बैनर के जरिए एहतजाजन वहां पे बैनर के जरिए आर्टिकल 370 और 35A की मांग की। आज हमने बेहतर समझा था शेख खुर्शीद से बात करेंगे, इसके बगैर भी आप तक रिपोर्ट्स और मेहमानों को आपसे रूबरू कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन RQ मुगल को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए तामील इरशाद।